है छत्रपति शिवाजी महाराज का, मेरा देश है महाराज अशोक सम्राट का, मेरा देश है रानी लक्ष्मीबाई का, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत ये केवल नारा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की संकल्पना है। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यूनाइटेड गेट वन ने इस मंच की स्थापना की, जहां नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और नवाचार एक साथ मिलकर भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान देते हैं। I would like to welcome all the honorable guests and dignitaries. This grand conclave is organized by United Gate One and Mr. Sachin Kadarnauri. It is a platform that provides Indian businesses with the opportunity to grow with financial support, gain global recognition, and strengthen the vision of self-reliant India. United Gate One's Atmanirbhar Bharat Conclave began its journey in Mumbai, Maharashtra, with the inauguration of Smart Cafe, our flagship community initiative in Maharashtra, now expanding across India. The project was inaugurated by Mrs. Amruta Fadnavis. The concept behind Smart Tiffin is to empower women by providing them sustainable employment opportunity and integrating them into the formal economic supply chain, ensuring a consistent source of income and financial independence. Now I would like to invite Ms. Tanya to be our host this evening. Well, thank you so much for the beautiful introduction. Thank you. A very warm welcome, ladies and gentlemen. Very warm welcome to you. Good evening. How are you all? Great? Good? Awesome? जितने लोग awesome feel कर रहे हैं, please raise your hands. Can we give a huge round of applause, ladies and gentlemen? Please, I can hear you all. एक बार जोरदार ताली से शुरू करते हैं आज का ये beautiful ceremony. Thank you, everyone. Well, what better place to host this event? What better place to organize this event than our national capital? So, ladies and gentlemen, हम लोग कोई भी occasion शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग करते हैं lighting of the lamp. To do the honors, to take the blessings of the Almighty, I would request our MD of United Gate One, Mr. Sachin Kadarnauri, to please kindly come up on stage. Srimati Chandrakanta Rajpurohit, international player, please kindly come up on stage. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. Thank you so much. I would request Ms. Vaishali to please kindly do the honors. Please come up on stage. राजा शिव कुमार ताली जी, प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए. मैं आपको आमंत्रित करती हूँ.
Thank you, dignitaries. Now, ladies and gentlemen, I will request you all, please आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैं विनम्र निवेदन करूंगी आप सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं फॉर द नेशनल एंथम। We can start. Okay, we will sing together. So please let's start together. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। Well, ladies and gentlemen, this is the time to felicitate our respected dignitaries, guest leaders who are shaping the future. So, सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी सचिन जी को, डॉक्टर सचिन कतार नावरे, MD of United Way One. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause to him. And to give the felicitation, I will request Dr. Sonal to please kindly come up on stage and do the honors of felicitating Dr. Sachin. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियों का साथ चाहूंगी। Thank you so much, sir, for coming today. Thank you so much. And now I would like to request Srimati Chandrakanta Rajpurohit ji to please kindly come up on stage. She is international player and coach and the gold medalist in volleyball. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. And to do the honor of felicitation, I would request Avinav Verma ji to please kindly come up on stage and give the token of love and appreciation. Now I would request Mr. Naveen Kumar Bharti ji, please stage पर आ जाएं, the President of Dicky. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause as I welcome him on stage and to do the honors of felicitation. Okay. There is a small correction. I am not the president on national level. I am heading the Delhi chapter right now. Thank you. Okay, to do the honors, I will request Ms. Vaishali to please kindly come up on stage and present the token of love and appreciation. Yes. Pleasure. Please. Thank you so much. Now I will request Raja Shiv Kumar Tyagi to please kindly come up on stage. He is the chairman of Delhi
and to do the honors, so I would request Ricky Gupta ma'am to please kindly come up on stage to present the token of love and appreciation to sir. सर खड़े हो आइए सर आ जाए Thank you, sir. Thank you so much. Well, before starting the speeches, ladies and gentlemen, once again, thank you so much for joining us here today. It's my absolute pleasure to welcome you all to this beautiful evening, ladies and gentlemen. आज की शाम का कुछ एक खास मकसद है। आत्मनिर्भर भारत का जज्बा को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत ये कैंपेन या एक स्लोगन नहीं है, ये एक सोच है, एक मूवमेंट है जो हर इंडियन के अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाता है। इसका मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी सोच और नए आइडियाज बनाना और अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना बिना किसी हेजिटेशन के। सोच के देखिए, अगर हम सभी लोग एकत्रित हो जाएं और एक हो जाएं तो कितना आसान हो जाएगा हर सपने को पूरा करना। Is it right, ladies and gentlemen? Can we give a huge round of applause to आत्मनिर्भर भारत, ladies and gentlemen? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है वो यूथ जो नए सपने देखता है, वो वुमेन जो नए रास्ते बनाती है और वो हर एक इंडियन जो अपने दम पर देश को आगे बढ़ाना चाहता है। कितने लोग यहाँ बिलीव करते हैं कि इंडिया अनस्टॉपेबल है? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। कितने लोग बिलीव करते हैं कि इंडिया अनस्टॉपेबल है? आई थिंक सभी लोग बिलीव करते हैं। कैन वी गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज? Well, that's the spirit. आज की शाम की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने वाली है इनोवेशन, इंक्लूजन और एक नए इंडिया की कहानी जो पूरे वर्ल्ड की अपनी पहचान बना रहे हैं। So let's keep that energy high, ladies and gentlemen, and pride alive. भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे। Well, ladies and gentlemen, to do the honors, I would request Naveen Kumar Bharti ji to please kindly come up on stage to say few words about Atmanirbhar Bharat or Atmanirbhar Vyakti. Please, ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. Thank you so much. Thank you so much. Good evening all. आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम जितनी भी बातें कर रहे हैं या करते हैं, ये इस देश की पहली बार नहीं है कि जो स्वदेशी अपनाए और स्वदेशी पहने या स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। आज़ादी से पहले भी ये किया गया था और आज फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा स्लोगन देश को दिया है जिसमें हम अपने उद्यमियों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसी प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारी स्कीम्स का भी इंक्लूजन किया गया। इनमें से कुछ स्कीम्स के बारे में हम पहली बात ही परिचित हैं। सेंट्रल इंडिया स्कीम जो दलित एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कोलैटरल फ्री यानी लोन लेते वक्त आपको सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जितने भी इंक्लूजन या हम कहें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए जो कदम है उनको सुदृढ़ बनाने के लिए ही इन स्कीम्स का जो लॉन्च किया गया। अभी ये स्कीम ऑलमोस्ट 7 साल तक चली है एंड मार्च 31, 2025 को इस स्कीम को क्लोज कर दिया गया। नाउ द सेकेंड वर्जन ऑफ दिस स्कीम विल बी इन द मार्केट वेरी सून। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। I had a meeting in Delhi with the finance department, जहाँ पर हमें roughly Stand Up India Scheme 2.0 के बारे में
3 to 4 months का वेट करने का एक टाइम पीरियड दिया गया। सो ये एक स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही स्टेट लेवल पर और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन किया गया है। जरूरत है उन प्रोग्राम्स को जनमानस तक पहुंचाने की। देखिए, प्रोग्राम्स तो ऑब्वियस है पॉलिसी मेकिंग लेवल पर बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए हमें ब्रिज गैपिंग कम करना होता है, जहां पर इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। I am representing here Dalit Union Chamber of Commerce and Industries, and DK has been working rigorously to uplift the marginalized community from last 20 years. Now at the time हम लोग अपने ही लेवल को अब रेज कर रहे हैं। पिछले काम हमने जितने भी किए हैं, मेजरली वी आर इन द पॉलिसी मेकिंग सेशंस। नेक्स्ट लेवल पर हम रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी तक जितना डायलॉग्स हो रहा था, and 20 years is a good enough time period to showcase the dialogues and deliveries. Now it's time to showcase the outcome of these dialogues and deliveries. So ऐसे बहुत सारे काम हमने देखे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। दिल्ली के अंदर, जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के अंदर आपने सीवेज क्लीनिंग की एक मशीन को देखा होगा, which is an automated sewage cleaning machine, specially fabricated by one of the entrepreneurs from the Pune. इस मशीन को लाने का मेन पर्पस था, being a human, be it from the marginalized community, he and she has a full right to have a dignified life. आप किसी इंसान को जब ये कहते हैं कि आप नाली में उतरिए और उसको अपने हाथ से साफ कीजिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि हम उसकी आत्मसम्मान पर कितनी बड़ी ठेस पहुंच रहे हैं। इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले ही बंद कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग चल रहा है, दो एक से नहीं लग रहा। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया एंड दे कॉल द पायलट प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी रनिंग इन तेलंगाना। दे कॉल्ड अप अ टीम एंड डिकी आल्सो to think about it whether it is applicable in Delhi or not, because दिल्ली की जो गलियां हैं, दिल्ली को पहले वॉल सिटी कहा जाता था, जो सिर्फ 4 बड़े गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, इन सब के बीच में ही काम होती है। सो वो जो पुराना एरिया है दिल्ली का, उसमें गलियां बहुत कम थी। दिल्ली गवर्नमेंट ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, तो उन्होंने सबसे पहली कंडीशन ये रखी, क्या ये मशीनें जो आप माउंट करेंगे ट्रक्स के ऊपर, विल इट गो ऑन टू द ग्राउंड लेवल। पहली कंडीशंस को क्लेरिफाई करते हुए मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद करने के लिए इस मशीन को लाना बहुत जरूरी है। अब इस टेंडर के अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था, दैट इज a person can only fulfill that tender if he or she owns that machine. हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, दलित एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, गाँव से उद्योगों की बात करते हैं। अगर उनके पास 40 लाख की एक मशीन ऑलरेडी साइट में खड़ी है और गवर्नमेंट का वेट कर रही है टेंडर आएगा तो उसको लगाएंगे, so I think that policy is like to design to make you fail. इस पॉलिसी के अंदर इस फर्स्ट स्टेप को सबसे पहले हटाना बहुत जरूरी हो गया। सो पॉलिसी डिस्कशन के बाद एक प्रपोजल दिया गया कि आप सिर्फ टेंडर को ओपन मार्केट में लाइए एंड अलाउ देम टू फुलफिल दैट टेंडर्स डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। इफ शी और ही गॉट द टेंडर अलॉटमेंट, देन गिव अस अ टाइम पीरियड ऑफ 60 days और 90 days। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया ये फर्स्ट पार्ट हो डायलॉग डिलीवरी, जिसका ये रिस्पॉन्स जो हम पॉलिसी मेकिंग की बात करें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द माइग्रेंट कम्युनिटी, 40 लाख इज अ बिग अमाउंट एंड टू स्टार्ट विद अ न्यू वेंचर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, इट्स ऑलरेडी लाइव इन द फ्यूचर,
बट उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी जो 40 लाख का रिक्वायरमेंट था, उसको फुलफिल करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ MOU साइन किए and they are readily agree on the goodwill of Delhi Chamber of Commerce and Industries. 200 लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और 200 लोग आज की डेट में उद्यमी हैं, जो पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर का सब कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉय हुआ करता था। आज वो 200 लोग खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ एज ए कॉन्ट्रैक्टर डील कर रहे हैं। उन 200 लोगों को ना तो किसी नेशनल बैंक ने फेस टू फेस देखा था, ना भी कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ। Yes, I submitted their document and all that, but जैसा कि बैंक्स के पॉलिसीज है कि वो आते हैं आपके घर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, आपका बैलेंस शीट चेक करना, आपके आइडियाज चेक करना, आर यू केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लोन बैक टू द लोन और एंड ऑल दैट। सो ये वाला सारा सेटअप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाला गया on behalf of Dicky and the SBI. SBI is the first one who turned up that we are ready to help these miners community and we are the one who is going to fund that entire tender. So second part, tender complete without having the machineries. Second part, without having fund in your pocket, you are still in the position to start the business. And the third one is the market. So Delhi government itself is a big market. They invited us. So यहाँ पर हमने वो तीनों काम करके दिखाए, जहाँ पर आपके पास ना तो पॉलिसी मेकिंग में ऑप्शन अवेलेबल था, ना फंडिंग में, एंड ना ही मार्केट। So these are the few glimpses I am talking about of Delhi Chamber of Commerce and Industries. Now I am talking about the United Gate one. I heard of this organization. ये सेम काम करने के लिए खड़े हुए। सो मेरा CMD साहब से आग्रह रहेगा कि बहुत जल्द हम डिकी के साथ एक MOU साइन करें एंड वी गो विद दिस प्रोग्राम ऑन द नेशनल लेवल। थैंक यू सो मच। Well, thank you so much, sir, for those thought-provoking insights and those inspiring words. And let's proceed with calling upon stage our next speaker. She is the founder of Holistic Epigenesis. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Dr. Sonal. Let's welcome her on stage to say a few words about Atmanirbhar Bharat and Atmanirbhar Nari. Come on, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियों का साथ चाहूंगी। Hi, good evening, ladies and gentlemen, and I won't take much time of yours. So, self-reliance means having confidence and ability to stand on one's own, emotionally, mentally, and financially. In my opinion, every woman in this world is self-reliant, but we need to see it in other parameters, that is financially. That is where women needs to be more self-reliant. So a self-reliant woman doesn't wait for opportunity. She creates them and she makes her own decision. She supports her family, contributes to the nation's growth. Financial independence gives her the freedom, the emotional strength which gives her the courage, and education which gives her the voice. When women become self-reliant, they don't just uplift themselves, but they uplift the generations. As we say, empower women means empowering the society. So let us encourage every woman to believe that she is capable, she is independent, and she can make the difference. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And let's welcome our next speaker, Shrimati Chandrakanta Raj Purohit ji on stage. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए श्रीमती चंद्रकांता Raj Purohit ji. She is an international player and coach and also the gold medalist in volleyball. नमस्कार।
सभी का बहुत बहुत आभार मुझे आज इस मंच पे मौका देने के लिए, और मेरे सामने विराजमान अतिथिगण और मेरी सारी बहनें जिन्हें अवार्ड मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, और थैंक यू गेटवे वन को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और जिसकी शुरुआत बॉम्बे से हुई और सेकंड प्रोग्राम है दिल्ली में। आपका स्वागत है चेयरमैन सर, और बहुत बहुत आभार दिल्ली की महिलाओं को भी मौका देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहेंगे। मैं बात करना चाहती हूँ कि भारत की संस्कार, सभ्यता और नारीत्व के लिए हमने बहुत बार देखा है कि महिलाओं को कम आंका गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरू से ही महिलाएं जो है अपने बलबूते पे बहुत आगे बढ़ी हैं। चाहे झांसी की रानी हो, पद्मिनी जी हो, बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो पीछे रहकर भी अपने बच्चों को जिन्होंने आगे बढ़ाया है। आज का युग बदल गया है। इसी युग को बदलते हुए देख के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी स्कीमें लॉन्च की है, जिसमें द्रोण दीदी करके एक कार्यक्रम है जिसमें बहनों को कुछ अमाउंट देना पड़ता है, 80% सब्सिडी दी जाती है, जिसके थ्रू बहनें आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ तक की सोच जो कि गाँव में भी जाके प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, तो हमें उनका साथ निभाना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आगे साहस और उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि महिलाओं को और मौका मिले, और महिलाओं में आत्मविश्वास के लिए हमें उनको एजुकेटेड करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के नाम पे हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन या सिंपल पढ़ाई, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ उनमें आत्मनिर्भर बनने की जो शिक्षा है हमें उसको भी देना चाहिए। कई बहनें हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाई है, लेकिन अगर मैं सोच सकती हूँ कि अगर उन बहनों को भी मौका दिया जाए, जिस तरह से गांव की महिलाएं हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनका दिनचर्या इस तरह का है कि गांव में काम करना, खेती बाड़ी करना, लेकिन अगर गांव से भी गौ सेवा करके भी वो अपना कार्य कर सकती है। गोमूत्र, गोबर, इन सब से खाद उपयोगी जितनी भी चीजें, इवन मैं छोटी सी बात करूंगी कि रुई को अगर हम खेतों से तोड़ के उसकी दिया बाती बनाकर अगर सप्लाई करें बहनें, तो उनको बहुत बड़ी हेल्प घर में मिल सकती है। घर में स्वरोजगार मिलने के कारण उनको खुद आत्मनिर्भर बन सकती है। उनकी खुद की कुछ जरूरतें होती है, हर बार वो हमेशा आदमी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है वो अपने आप को इस बलबूते पे मजबूत करे कि हम फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हों, और उनकी मजबूती उनके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत से कार्य हैं जो घर में बैठे छोटे दूर दराज, और बहुत से अभी तो जितनी एप्स चल रही है उसके माध्यम से बहुत छोटे छोटे अचार, पापड़, बड़ी, ये इस तरह की छोटी छोटी आइटमें बहनें अपने घर में बनाकर वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सप्लाई कर सकती हैं, जो कि देश नहीं विदेशों तक जाती है। इस तरह से जो कार्यक्रम है जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो महिलाओं को सब्सिडी दी जा रही है, जिस तरह सर ने बताया कि बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत मिनिमम फीस देकर उन बच्चों को जो पॉलिश किया जाता है, चाहे उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पार्लर का काम हो, छोटी मोटी और इंडस्ट्री का काम हो, उनको बहुत सी चीजें हमारी सरकार जो है उपलब्ध कराती है। बस जरूरत है उन बच्चियों को, उन महिलाओं को उसके बारे में जागरूक करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ यहाँ जितनी बहनें आई हैं, हम सभी एक प्रण लेके चले कि कम से कम 10 महिलाओं को हम आगे नॉलेज में दें, ये सारी चीजें उनको ज्ञान दें, ताकि वो बहनें 10 बहनों को और सिखाए। इस तरह से हम एक पूरा जाल, पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। मैं हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा उपयोगी कार्यक्रम सोचा। आप सभी को जिन्हें अवार्ड मिला है, एक बार मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए and those thought provoking and inspiring insights. Well, ladies and gentlemen, now it's time for a very interesting segment of our event, which is the panel discussion. And I would request you all to please give a round of applause to all our panelists as I welcome them on stage.
तो सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सोनल मैम को। प्लीज काइंडली कम हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाइए। Our next panelist, Srimati Chandrakanta Rajpurohit ji, please kindly come up on stage. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. Thank you so much, everyone. Please be seated. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नवीन कुमार भारती जी को। प्लीज आप स्टेज पर आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। And for the discussion, I would request our moderator to please kindly come up on stage with a huge round of applause. Ladies and gentlemen, let's welcome Abhinav Verma ji on stage. And now I hand over the stage to him. The stage is all yours, sir. Thank you. Mic और देखो। Welcome to the panel discussion. नवीन कुमार भारती जी, श्री नवीन कुमार भारती जी ने बहुत हमारी जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो स्कीम है, उस पर बहुत रोशनी डाला। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ चंद्रकांता मैम ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी महिलाओं से संबंधित। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे आत्मनिर्भरता भारत को लेकर और अवेयरनेस को लेकर, जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको यूनाइटेड गेटवन के बारे में छोटा सा ब्रीफ दोबारा देना चाहूँगा। यूनाइटेड गेटवन दुबई बेस्ड कॉर्पोरेट है जो फाइनेंस में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, लेकिन इसके साथ साथ फिलैंथ्रोपिक वर्क उनका बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली फॉर टू जस्ट टू अर्न मनी, उनका मकसद ये भी है कि नेशन कैसे मजबूत हो और पूरे वर्ल्ड वाइड जन कल्याण, विश्व कल्याण की बातें हमारी कंपनी ज़्यादा करती है। तो ये पिछले महीने हमने महाराष्ट्र में एक आत्मनिर्भर भारत का एक इवेंट किया और हमारे माननीय सीएम साहब जो है, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस जी ने एक छोटा सा केक काटकर इसका उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट का नाम था स्मार्ट टिफिन। अब ये स्मार्ट टिफिन क्या है, इसको थोड़ा हम अच्छे से जानते हैं। स्मार्ट टिफिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा महिलाओं को एक फैब्रिकेटेड वुडन और आयरन का एक शॉप बनाकर देगी, जिसको चलाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि स्मार्ट टिफिन, तो स्मार्ट टिफिन क्या है? स्मार्ट टिफिन यानी कि टेक्नोलॉजी से पूरा इक्विप्ड होगा वो। लाइक जैसे पावर के लिए उसमें सोलर पैनल लगा रहेगा, बिलिंग के लिए जो मशीन लगती है वो लगी रहेगी। लेकिन हम देंगे किसको? सवाल ये हम किसको देंगे? हम अंडर प्रिविलेज मिडिल क्लास वुमेन को देंगे जो ऑलरेडी बहुत सारा काम रोड में रोटी बेचने का काम करती है, कुछ ठेला गाड़ी लगाती है उसमें करती है, कोई छोटा सा दुकान खोल के रखी है। तो हम उनको देंगे ताकि उनको एक अच्छा सा फैब्रिकेटेड शॉप मिले, जहाँ उनको ऑर्डर ज़्यादा मिले, हाइजीन फूड मिले और साफ सफाई पूरी तरह से रहे। तो इससे उसको मनोबल बढ़ेगा, उनका एनकरेजमेंट मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएगी अपने सर्वाइवल के लिए। तो स्मार्ट टिफिन का हमने वहाँ अनाउंस किया और बहुत जल्द हम लोग उस स्मार्ट टिफिन प्रोजेक्ट को पूरे महाराष्ट्र में लॉन्च करने वाले हैं। बस ज़्यादा दिन नहीं, 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, जो ऐप के माध्यम से होगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो एमडी साहब हैं मिस्टर सचिन कातरनावड़े, उनका ये सोच है कि महाराष्ट्र में जो हम कर रहे हैं वो एक ट्रायल है, या महाराष्ट्र के लिए तो है ही, लेकिन जैसे ही उसमें सक्सेस मिलता है तो हम पैन इंडिया ये करने वाले हैं। पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां भी ऐसी महिलाओं को जो जरूरत है, हम सबको वो फैब्रिकेटेड शॉप देने वाले हैं। और इसमें अभी तक जो मुझे ज्ञान है, महाराष्ट्र सरकार बहुत एनकरेज करती है हम लोगों को, और वो सरकार भी हम लोगों को बहुत सहयोग देने का उन्होंने वादा किया है। बहुत जल्द उनके साथ भी हमारा एक मीटिंग होने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जिसके साथ हम उनके साथ कुछ सपोर्ट लेने वाले हैं, जैसे एनओसी वगैरह हुआ, जगह कहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा,
उसका परमिशन हुआ, अप्रूवल हुआ, ये सब के लिए। तो धीरे धीरे हम इस प्रोजेक्ट को पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको हम फैलाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो ये सर इवेंट है, इस इवेंट में मैं तीनों पैनलिस्ट का स्वागत करता हूँ, और स्वागत के साथ साथ मुझे लगता है कि इन तीन बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है और ये सच है। तो सर मैं सबसे पहले सर नवीन भारती कुमार जी से आपसे पूछूंगा कि सर आत्मनिर्भर भारत को सब सुन रहे हैं, चारों तरफ पूरे विज्ञापन है, पोस्टर्स हैं, अभी आपने बहुत अच्छा बोला और भी लोग बोलते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन सर अगर आप एक कॉलेज से बाहर चले जाएं या कोई इंस्टीट्यूशन के बाहर चले जाएं, वहाँ आप इससे पूछें कि आत्मनिर्भर भारत क्या है और उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, और अगर तुमको आत्मनिर्भर बनना है तो क्या क्या कर सकते हो, तो वैसा ही जवाब सुनने नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। तो सर पहला सवाल ये होता है कि हम अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। अगर कोई आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता हो तब भी अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को शिक्षा दे सके कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है। मान लीजिए कि कोई नौकरी करता है और वो नौकरी करता है वो नहीं है, लेकिन कोई और तो हो सकता है। तो नॉलेज, अवेयरनेस, जानकारी सबको होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं सर, आप इसमें रोशन डालें। क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है। जिन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं या फर्स्ट जनरेशन में जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले वी नीड टू कैच देम यंग। दैट मीन्स we need to focus on universities and college। वहाँ जाइए, वहाँ प्रोग्राम्स करने, प्रोग्राम्स में उनको इन्वाइट करना। Being a very young people, they do not have that kind of patience to sit and hear the entire long lecture। So उनकी लेवल पर आकर कुछ ऐसा इनोवेटिव हमें ढूंढना होगा जिससे हम उनके साथ कनेक्ट करें। जब हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे तभी हम उन्हें अवेयरनेस अबाउट दी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आई वॉज स्पेंडिंग इन अ शॉप ऑफ टॉयज एंड स्टेशनरीज। देयर इज अ वेरी यंग कपल, नॉट से दे आर डिफरेंट, वी आई डोंट नो, बट वो आए एंड दे वांट टू परचेज समथिंग। उन्होंने शॉपकीपर से पूछा, जो ये प्रोग्राम आप मतलब जो प्रोडक्ट मुझे आप दे रहे हैं, ये क्या इंडिया मेड है या ये इम्पोर्ट किया है? ओनर से ये इम्पोर्टेड है। कह रहे नहीं सर, मेरे को नहीं चाहिए, हमें आत्मनिर्भर प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे देश का ही बना हो और उससे वो पैसा और वो प्रॉफिट हमारे ही देश में रहे। तो ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन या यंग पैरेंट्स या जो यंग की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की, उनके पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है। येस 100% नहीं है। तो बेटर टू कैच देम यंग एंड फॉर दैट वी नीड टू कनेक्ट एंड फोकस ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल। यस सर, बहुत अच्छा जवाब मिला सर। मेरा ऐसा सोचना है जैसे कि जो प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं आपके समक्ष, अगर इसी लेवल का छोटा छोटा प्रोग्राम अगर हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी करें तो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। हाँ, अवेयरनेस को बढ़ाएगा और इसमें कॉलेज मैनेजमेंट अगर हम लोग सहयोग करके करें तो और भी मजा आएगा। तो सर ये नोटेड किए, हम लोग इस तरह का प्रोग्राम भी नोट करते हैं और हम इस तरह का प्रोग्राम भी करेंगे। In addition to that, we are already in connection with the Delhi University, IIT University and the Ambedkar University। हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ बात करके इन प्रोग्राम्स को ऑलरेडी यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जीक्यूट किया है। सो फर्स्ट प्रोग्राम जब हमारा था, so there were only 15 students out of the entire college of hundreds of students, only 15 students। But next प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 120 स्टूडेंट थे, जो जगह हमें क्लासरूम दिया गया। बिकॉज we are not arranging that program in a conclave or concert hall or something। We arrange that program in a classroom only। कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए 10 मिनट में। तो वो क्लास जो 40 to 50 स्टूडेंट्स को कैटर कर सकता है, वो 120 लोगों से भरा। थैंक यू वेरी मच। मैं कविता मैम से पूछूंगा, आप क्या सोचती हैं मैम
ये जो प्रश्न था मेरा कि अवेयरनेस कैसे बढ़े उस पर। सर मैं इनसे 100% सहमत हूँ, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो देश का भविष्य है, जब उनको सब चीज़ों का नॉलेज होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और बिजनेसमैन जो है वो नौकरी एक आदमी करता है, लेकिन बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है तो लाखों लोगों को वो अपने यहाँ पे नौकरी दे सकता है। तो इस मेंटलिटी के साथ बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो आजकल लोग करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो घर में बच्चे पढ़ते भी हैं और काम भी कर रहे हैं। इवन डिलीवरी का काम भी बच्चे करते हैं। इवन ये अपना बाइक चलाने का, ये जो ओला कैब, इनमें भी ऊबर, इन सब चीज़ों में भी बच्चे काम करते हैं, क्योंकि उनको एक लगन है कि हमें इस चीज़ के लिए हमें अपना आत्मनिर्भर करना है। तो हर बार हमें घर वालों की तरफ देखना नहीं पड़ता, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे भी एफर्ट करते हैं। क्योंकि आज के समय में जिस तरह से देश बदल रहा है, ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, ज़रूरतें बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हम लोग दूसरों को नौकरी भी देते हैं। अगर कोई आत्मनिर्भर बन रहा है तो साथ साथ वो 10 लोगों को, 12 लोगों को, 100 लोगों को वो नौकरी भी देता है, तो उनका भी काम आगे बढ़ता है। तो ये दो काम हो जाते हैं एक साथ। हाँ जी सर, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। मैं अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हूँ। तो मैंने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी देखा है, वहाँ के एक ग्रुप बनाए गए थे। वो महिलाएं वहाँ से शॉल वगैरह बना के और यहाँ पे लाके सेल करती थी। कश्मीर से महिलाएं लाके यहाँ पे सेल करती थी। सभी तो उनको मैं कहीं पे भी स्टॉल दिखवाती थी। अभी दिल्ली में बहुत जगह मेले लग रहे हैं, सभी बहनें जानती हैं। तो उन मेलों में भी स्टॉल दिखा के उनका बिजनेस जो है, उनका मार्जिन उनको वहाँ तक पहुँच जाता था। तो ये एक बेनिफिट है। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे यूट्यूब में देख रहा था, तो एक वीडियो मेरे सामने आया। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो बना के रखा है जो मुझे अच्छा लगा कि आप आत्मनिर्भर जो बनना चाहते हैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं दिवाली में। तो दिवाली में जो दिए बनाते हैं, जो किसान लोग, जो महिलाएं जो घर में दिया बनाती है, वो लेकर मार्केट में बैठे रहती है, कोई खरीदता नहीं है। सब लोग अमेजोन से मंगवा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला, बहुत डेकोरेटेड वाला, थोड़ा सा चाइना वाला। तो ये सही नहीं है। जो रोड में जो छोटे छोटे मतलब अंडर प्रिविलेज जो वुमेन हैं, वो लोग जो बनाकर मेहनत करती हैं और वो अपना देसी सामान बेचना चाहती है, वो हम लोगों को खरीदना चाहिए। प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग को ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक इसी से साथ जुड़ी हुई चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे घरों में हम लोग देखते हैं आजकल आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत दिखाई देते हैं। हर जगह पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है हम खरीद के लाते हैं कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उस सुंदरता का यूज़ क्या है, हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अगर हम छोटा सा गमला भी ओरिजिनल वाला पौधा अगर अपन घर में रखते हैं, उससे पर्यावरण के साथ साथ हमारा वातावरण जो है वो भी शुद्ध हो। चलिए, मैं अब डॉक्टर सोनल मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहूँगा। पहला तो ये कि आपके दिमाग में क्या है, कुछ आप आइडिया दे सकती हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीइंग आत्मनिर्भर वुमेन, आज की डेट में आप आत्मनिर्भर हो, आपने, हमें पता है कि आपकी एक संस्था भी है जिसका नाम है होलिस्टिक एपिजेनेसिस, और ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बहुत कुछ हैं। तो इन्होंने एक अपनी संस्था बनाई है होलिस्टिक एपिजेनेसिस। तो आपको, मेरा दूसरा सवाल है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया अपने, अगर संस्था को आपको स्टैब्लिश करना है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइएगा। पहला है अवेयरनेस के बारे में बताइए। तो एक्चुअली अवेयरनेस की जब बात है तो मैं जो टॉपिक चल रहा था उसी की कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूँगी। सी आई एम अ मदर टू अ वेरी यंग ग्रोइंग किड, ही इज इन क्लास 10। तो जो हम बात कर रहे थे के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की, लेट मी टेल यू, आज का युग बहुत अलग है। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल जो उनके पास इजीली अवेलेबल है, और वो वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली दे कैन टेक इट। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि जो मेरा बेटा अभी से बोलता है कि ही डजंट वांट टू गेट इनटू एनी जॉब्स एंड ऑल, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी इश्यूज, ये सब चीज़ें आज का यूथ जानता है। तो अवेयरनेस यूथ के अंदर है। द ओनली थिंग इज दे नीड टू नो कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है।
जैसे ही उनको ये पता चलेगा, आई थिंक दे आर वेरी क्विक टू लर्न एंड टू एक्ट। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं सोचने में, सो दैट इज़ वन थिंग। सो जैसे सर ने बोला कि अर्ली टू कैच इज द थिंग, आई थिंक सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल्स पे नहीं, स्कूल लेवल्स पे भी प्रोग्राम स्टार्ट होने चाहिए। अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल ये सब बन के दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग एंड दे आर इवन प्रमोटिंग द बिगर ब्रांड्स, दे आर मोर बिगर सेलिब्रिटीज एंड एक्चुअल सेलिब्रिटीज। सो आई थिंक एज सर सेड, सो easy to catch young and young mind are easy to bend also. So it is good कि ये प्रोग्राम सिर्फ यूनिवर्सिटी में बल्कि स्कूल लेवल्स पे भी स्टार्ट किए जाएंगे। सेकेंड थिंग जो मुझे चैलेंजेस आए, तो फर्स्ट चैलेंजेस टू ब्रेक द टैबू, बीइंग अ डॉक्टर, गेटिंग इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग. It was not that much though because I'm a homeopath, but then also I feel it somewhere people do not accept it easily. A doctor is talking about healing, a doctor is talking about astrology, Ayurvedic astrology and all those things. But these are the ancient wisdoms which we have. और हमें इनको लेकर हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये सारे इश्यूज, ये चैलेंजेस इनिशियली मुझे थे, मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बीइंग अ डॉक्टर व्हाई आर यू डूइंग इट, टैरो या कुंडली क्यों देख रहे हो. So but then they don't know, I have to tell them, I have to make them aware about the benefit of it, and once they get the benefit then they become curious about it and they wanted to learn and I teach them also. So main challenge मेरे लिए वही था कि how to break that barrier, वो acceptance कैसे create किया. सर मैं भारती से जानना चाहूँगा सर, आत्मनिर्भर को एक LIC एडवाइजर भी होता है, एक LIC एडवाइजर का आत्मनिर्भर होना और एक स्मॉल इंडस्ट्री या MSME में अपना छोटा स्केल में इंडस्ट्री खोलना वो भी है सर. तो ये हम सुन रहे हैं आजकल कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, विदेशी सामान में मत कर दो, देशी सामान कर दो. तो सर ये इसमें थोड़ा कुछ आप बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए क्या हमको करना चाहिए, हम देशी सामान को ज़्यादा बढ़ावा दें और विदेशी को कैसे करें. जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे रील आते हैं कि अमेज़न से कोई सामान मत कर दो, इस तरह से फ्लिपकार्ट से मत कर दो. तो क्या ये सही है? When you talk about the global level and the globalization, I agree we need to promote our own products and आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ज़्यादा लेना होगा. लेकिन ये जो बहिष्कार वाली बात है, I don't agree on that. बिजनेस बहिष्कार करके कभी नहीं होता है. आपने कभी किसी I'm sorry I'm taking name of the Manya community, आपने देखा है कि उन्होंने किसी का बहिष्कार किया है and they are the number one community in business. So अगर आपको बिजनेस करना है या उद्यमी बनना है तो ये बहिष्कार वाला पार्टी आपको साइड रखना होगा. You can't be biased to any community, any male, female, किसी चीज़ में नहीं जा सकते. आप प्रोडक्ट बनवाने के ऊपर बात कीजिए कि हम अपने देश के अंदर कितने प्रोडक्ट्स को डेवलप करके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं. जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो उस लेवल से इंक्रीज हो जाएगा. आपका इंटरनेशनल इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. बट आप 100% किसी भी चीज़ को बंद नहीं कर सकते. सर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो ये होगा कि कॉम्पिटिशन भाग लेने से 100% कॉम्पिटिशन में भाग लेने उसमें अव्वल आने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तो हो गया आत्मनिर्भर भारत का, ये जनरल हो गया. अब हम थोड़ा सा रोशनी आप डालिए कि महिलाओं को पर्टिकुलर, जैसे हमारी कंपनी ने स्मार्ट टिफिन ऑर्गेनाइज किया है प्रोजेक्ट, तो महिलाओं को आगे इसमें क्या क्या कर सकती है, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारी कंपनी के लिए, है ना, कि हमारी कंपनी और किस किस चीज़ों में महिलाओं के लिए कर सकती है, तो उसमें कुछ अगर आइडिया है तो आप दीजिए. सर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर हम छोटी सी, अब बहुत छोटी सी चीज़ है जिस पे हम मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं. हमारे रीति रिवाज, हमारे शादी ब्याह में गीत गाने की भी एक प्रथा है, संस्कारों की एक प्रथा है, जो कि आजकल के टाइम में हमारे, अगर मैं कहना चाहूँगी, अगर यहाँ पे बैठी जितनी महिलाएं उनसे बोल दिया जाए कि उस रीत पे आप एक गाना बताइए तो शायद नहीं होगा. शायद मुझे भी बता दिया जाए कि उस प्रथा के ऊपर, उस
रीति रिवाज के ऊपर अगर आप एक गाना सुना दीजिए या भजन सुना दीजिए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीज जो है आज भी गांव में जिंदा है, और वहाँ जिंदा उन महिलाओं ने रख रखा है जिन महिलाओं ने इसको रेगुलरली गाया है। शादी ब्याह होती है, बहुत छोटी सी चीज है, मेहंदी है, 30 त्योहारों पे हम मेहंदी लगाते हैं। मैं जिस जगह से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो हमारे घर में एक प्रथा होती है कि हम मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगाने के लिए भी जब हम छोटे छोटे होते हैं, हमें कौन पकड़ा दिए जाते हैं, आप मेहंदी लगाओ, एक दूसरे के मेहंदी लगाओ। उस वक्त हमारे हाथों में वो ना तो फिनिशिंग होती है, ना हमें पता होता है कि डिजाइन क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसी महिलाएं हैं जो शादी की अगर आप मेहंदी कहोगे, पूरी बारात वो आपके हाथ पे उतार के दे देगी। अगर आप 30 त्योहार की कहोगे, सावन की कहोगे, पूरे झूले बना के दे देगी। तो महिलाओं के अंदर वो हुनर है जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, जिसको हम दिल्ली तक या बड़े सिटी तक ला नहीं पाते हैं। तो उन महिलाओं का एक छोटा छोटा ग्रुप अगर हम लोग किसी भी शादी ब्याह में बुकिंग करें, उन महिलाओं की सेफ्टी के साथ अगर हम उन महिलाओं को हमारे यहाँ के शादी ब्याहों में बुलाएं, उनको गीत गाने का अवसर दें, जो जिस मतलब काम को कर सकती है बहुत अच्छा, उस तरह से अगर हम उनको मोटिवेट करें तो शायद उनके अंदर भी होगा कि नहीं, मेरे अंदर भी ये गुण है, क्योंकि वो उस गुण को पहचान नहीं पाती। वहाँ पे सब एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें दिल्ली में बैठ के, तो वो भी एक काम है, और वो भी बहुत बड़ी क्या बोलूं उसको कला है, जिसको कि हम पहचान नहीं पाते हैं। गोमूत्र है, उपले है, उपले का अगर हम यहाँ देखें तो उपलों से हम लोग यहाँ पे धूप करते हैं, दिया बत्ती बनाते हैं। उपलों से हम उसका खाद बनाकर हम लोग जो पौधों में सप्लाई करते हैं। आप देखिए दिल्ली में आपको प्रॉपर उपले भी नहीं मिलते। अगर मैं व्रत खोलने बैठूं तो हमारा ये रहता है कि हम उपलों पे पहले सबसे पहले गौ माता को अर्पित किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। तो वो भी अगर ढूंढने जाऊं तो वो भी नहीं मिलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी हमारी जरूरतें हैं जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते। हम टैरिफ पे ध्यान देते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से अगर शुरू करें तो इसकी पूरी लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर हम लोग उन लोगों को साथ में लेके करें तो बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली होगी, सभ्यता जिंदगी रहेगी, हमारे संस्कार रहेंगे, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि किस तरह से क्या चीजें चल रही। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं आपसे वो लिस्ट ले लूँगा, वो लिस्ट ले लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे बहुत सारे आत्मनिर्भर आइकन हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम उनको ऑनर करेंगे। मैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम, डॉक्टर सोनल, थैंक यू। आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार अपनी तालियों से बता दीजिए। And what an engaging audience you all are. Thank you so much. It is my absolute pleasure to be here standing in front of such a beautiful and engaging audience. Okay, ladies and gentlemen, हमारे जो panelists यहाँ पे बैठे हुए थे, I am little late, but I want to ask you all any questions that you want to ask. Any questions you want to ask? Okay, I'm coming to you, please. Up my region, please. Thank you. Okay, also I would request कि आपको किससे क्वेश्चन पूछना है, please mention that. My question is to Bharti sir. Sir, I wanted to know, अभी जैसे हम लोग यूथ को ज़्यादा एड्रेस करते हैं, and what is the correct roadmap? जैसे आत्मनिर्भर होना तो ठीक है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान रहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि काफी स्टार्टअप्स में फेलियर रेट्स ज़्यादा भी रहते हैं। What is the right roadmap जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकें? See, sustainability depends on the business are you in. कितना उसका डिमांड है, कितना मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, कितना मैं अपना फाइनेंस मैनेज कर पा रहा हूँ. If I'm not in a position to manage all these things, better to hire the specialist one. हम लोग ही अभी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सब कुछ खुद करना चाहते हैं, which is not possible at all.
You need to build up a team first. टीम को ट्रेन करना, टीम को डेवलप करना एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस टीम को रिटेन करना। अगर टीम आपके रिटेन कर पा रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने गिनवाई हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, वो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। स्टार्टअप्स का फेल होने का रीजन है एक तरीके से डिफरेंट आइडियाज को कॉपी करना। एक यूनिक आइडिया निकालना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर चलता हूँ। चाय वाला करके एक आइडिया आया एंड वो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को स्केल अप कर गया। तो आप देखेंगे कि उसको कॉपी करते हुए बहुत सारे डिफरेंट चाय वाला, चाहे वो चायों से या कुछ भी है, बहुत सारे मार्केट में आए। वेदर दे विल सर्वाइव बिकॉज उनके पास वो आइडिया यूनिक था ही नहीं, वो कॉपीड आइडिया था। अगर आइडिया ही कॉपी है तो बिजनेस को रन करना पॉसिबल ही नहीं। सो इट्स बेटर कि यू हैव अ यूनिक आइडिया, build your team and focus on the future. Thank you. Thank you so much. I hope you got your answer. Another question? Sure. No, this is for Sonal ma'am. Please a mic, please. पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, माइक देता जाएगा। Ma'am, you can please seated and give answer from there also. Hi ma'am. Hi. So my question is, जैसे आप हीलिंग में ज़्यादा आपका जो करियर है वो रहा है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर को सेल्फ हीलिंग के लिए याद रखने चाहिए, या फिर he or she should more like focus more on such points जहाँ पे उनको ज़्यादातर फोकस रह सके खुद के काम में और नेविगेट कर सके between the chaos. Right. So दो ही पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। पहला वो पैशन, वो आइडिया जिस पर उसने वर्क करना शुरू किया, जिस मोटिव के साथ, और सेकेंडली जो मनी को अर्न करता है, वही मोटिवेशन है। I hope I gave you answer. Yeah. Thank you. Sonal ma'am, I have a question for you. जैसे आपने कहा द लेटेस्ट न्यू जनरेशन है, उनका अटेंशन स्पैन काफी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। इवन दो दे आर अवेयर, मोस्ट ऑफ द टैलेंट इज गोइंग आउटसाइड कंट्री, इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज सारा एक्सप्लोर करते हैं। दे आर नॉट स्टिकिंग टू वन जॉब और वन अपॉर्चुनिटी। So in this whole scenario, the entrepreneurs or the new businesses are struggling a lot to keep their or retain their talent. So what will you suggest for like employers or the entrepreneurs? I think employers को अपना ideology change करना होगा. If they need to work with Gen Z, this is what I feel. So basically वो attention span की कमी नहीं है. Now generation is more risk taking. They are more passionate about the things and they want to explore them. वो job security, 9 to 5 वाला job, sustainability में वो believe नहीं करते. They believe in experimenting. They believe in understanding the things. And वो उसमें फिर जो उनके लिए सबसे best है, उनका work life balance, उनकी life के जो motives और goals हैं, उसके साथ जो चीज align करती है, then they go for it. तो I think employers को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक तो वो किस टैलेंट को हायर कर रहे हैं फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क, और उनको रिटेन करने के लिए उनको अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ेगी उनको रिटेन करने के लिए। तो अटेंशन स्पैन कम नहीं है, दे आर मोर एक्सपेरिमेंटिंग, सो दे हैव टू बी ओपन विद ऑल द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ऑल द न्यू वेज ऑफ वर्किंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड ऑल। तो अभी इनका यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा है, अपना पड़ेगा बिकॉज ये लोग तो जॉब सिक्योरिटी की वजह से रुकेंगे नहीं। दे नो कि दे आर टैलेंटेड, सो दे नो वेयर द अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन अ हायर पे स्किल, ऑन अ बेटर विद बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। सो अभी वो 40 में रिटायरमेंट सोचते हैं, उससे भी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन उससे
उससे भी जल्दी सोच रहा है. So that is why. And there are career opportunities available where people are getting financially, they are getting financial stability and freedom at a very young age. And along with what they want to do, they are earning well. So definitely they would like to go for it. हमें वो opportunity मिलती है तो हम भी वही करते हैं. Well, thank you so much. Hello, my question is from Bharti sir. Please go on, सर एक छोटा सा क्वेश्चन, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, जो मैंने भी अपने टाइम पे फेस किया, कि क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट पोर्टल है या कोई वेबसाइट ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो डायरेक्ट नए लोगों को ये बताए कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज हैं, ये आपको यहाँ ऑफिस में जाना पड़ेगा, ये आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, सो दैट जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए. अभी क्या होता है, अगर मुझे अपना न्यूज़पेपर खोलना है, या तो मैं 10 लोगों से बात करूंगा, वो मुझे बताएंगे क्या क्या करना है, या फिर मैं भटकता रहूंगा. अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है तो या तो मेरे पास कोई हो सीनियर मुझे बताने के लिए, या फिर कभी कोई ऑफिसर आएगा, वो छापा मारेगा, बोलेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, तब मुझे पता चलेगा. तो ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पे जो भी फील्ड है 10-12 प्रोसीजर 50 प्रोसीजर जो भी है, वो किसी भी नए बंदे को जो करना चाह रहा है उसे समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, तो मुझे ये चीजें पहले तैयार करनी पड़ेगी. एक जगह पर सारी चीजों को रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट माई एमएसएमई इज द पोर्टल यू कैन चेक ऑन, जहाँ पर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन सिंगल बोर्ड. फर्स्ट. सेकंड, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, नए इंस्पेक्टर केम आउट, ऑटोमेटिकली उस केस में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो FSI से लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से लेना है, या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से लेना है, तो सारी लिस्ट डाउन होती है पहले से. मेजर प्रॉब्लम होती है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, हमें किस फील्ड में जाना है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है. मैंने ये क्वेश्चन फेस किया हो कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन कौन सा ये नहीं पता. अगर किसी को ये ही नहीं पता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, जॉब करना तो एक अलग बात है, अगर उसे बिजनेस करना है, उसे किस फील्ड में बिजनेस करना है, उसे ये नहीं पता है, माय पर्सनल ओपिनियन इज डोंट स्टार्ट योर बिजनेस, बिकॉज यू विल गोइंग टू entirely wasting the money and efforts and time also. First, learn something, maybe under anyone, get some experience, 2 years, 5 years. अगर आप तेजी से सीख सकते हैं तो आप वो चीज़ें 2 साल में सीख जाएंगे, बाकी लोग 5 साल में सीखें. जब आप 5 years का एक्सपीरियंस आपके पास है, you got to know the policies, you got to know the finances, you got to know the market, then only patient with the full-fledged strength. उसके अलावा भी be prepared for the backup also. Business is not like a job secure portal kind of, जिसमें आप जाते हैं 9 से 10 5 काम करते हैं. यहाँ तो 12 घंटे का है, 14 घंटे का भी है, और सिर्फ ये मान लीजिए कि आप 6 घंटे सोने को मिल सकते हैं तो 18 घंटे भी है. बिजनेस नहीं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप एस्टैब्लिश नहीं होंगे, आपकी जनरेशन एस्टैब्लिश होगी. ओनली थिंग इज राइट नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ एस्टैब्लिशमेंट. आई होप आई आंसर यू. थैंक यू. Thank you so much, sir. Which is the badge of honor. It's time to celebrate the partnership, craftsmanship, excellence in honor of those people who have made the remarkable contribution through their hard work, dedication, and achievements. To do the honors, may I request Mr. Sachin Katar Navre to please join us on stage for presentation.